हेलो। हेलो। 3 times bandwidth of M. Find the find the find the coefficient of coefficient of coefficient of cos 2 pi cos 2 pi 1016 into 10 की power 3t. Try to solve this question. This is a very good question. The part 1, this is the part 1 and this is the part 2. Analyze it, and it will take some time, but it will improve your concepts. Write it. आप चाहें तो ऑप्शन भी लिख सकते हैं. ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन को ऑप्शन में भी देता हूं आपको. ऑप्शन ऑप्शन ऑफ ए इज 5j8 5j8 6. ऑप्शन बी 5j6 8. ऑप्शन सी 5j1 8. ऑप्शन डी 5j6 5j6 6. Solve it. Solve this question. This is a very good question from the FM, and you will get your concept refined. Solve करें इसको फटाफट. It's a very good question from the old gate questions. This is from the old gate questions. Try to solve it. Take your time. It's very good question. It's very good question. Try to solve it.
It's a very good question. What is given? Given C of t. Carrier wave is given there. Carrier wave is given. Message signal is given. First, this signal is amplitude modulated. Amplitude modulated. Find bandwidth and power. Then the signal is FM modulated. FM, frequency modulated. Same signal with the frequency deviation is 3 times the bandwidth of AM. Find the coefficient of this component. Very good question. Very good question. What is the answer? Okay, let me start. Okay, let me start this solve this question. This is a very good question from the gate point of view. Let me solve it. First, what is given? AC is equal to 5 volt. Then AC is equal to 5 volt. Then MT is, this is FM. 2 pi FM basically. This is 2 pi FM. This is 2 pi FCT. तो यहां से FM कितना आएगा? FM is 2 kilohertz. FM is 2 kilohertz. AM is 1. ये तो आ गया. Mu is 0.707. These are the given data. First question is for the AM. First question is for AM. First question is for AM. तो AM की bandwidth क्या होता है? Bandwidth for AM. It is 2 FM. We know. So 2 into FM is 2 kilohertz. That is equal to 4 kilohertz. This is the bandwidth of AM. The bandwidth of AM. 4 kilohertz. Clear? Now, what is the power? Power is PT is equal to PC 1 plus mu square by 2. mu दिया हुआ है PC. PC कितना होता है भाई? PC क्या होता है? AC square by 2R. 2. R तो 1 नहीं दिया हो तो मानते हैं. तो AC is 5 square upon 2. 25 upon 2 यानी 12.5 watt. This is 12.5 watt. Now put here. Put this data is here. You will get PT is equal to 12.5 1 plus 0.707 का whole square, sorry, का whole square by 2 you will get PT is equal to, you will get PT is equal to 15.62 watt. So this is the total power transmitted. This is the total power transmitted. The answer. This is for AM. This is part 1. Basically, we solved only part 1 related to AM. Now, the same problem will be done for the FM. FM itself. Note down it. Then we will solve for the FM. Note down it. The same problem we will solve for the FM. ये लिख लिया. एक बार ये लिखिए.
ये नोट डाउन कीजिए पूरा, देन अपन पार्ट 2 इसका सोल्व करेंगे, दैट इज फॉर द एफएम। डन, नोट डाउन कीजिए इसको, ये लिखिए पीसी देन पीटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज part 2. Part 2 says, part 2 question, part 2 both MT and CT are used to generate, sorry, part 2 is this, CT and MT are used to generate FM with maximum frequency deviation is 3 times of bandwidth of AM. ठीक है सर, तो maximum frequency deviation del F is a 3 times of bandwidth of AM. ठीक है सर, तो del F is equal to 3 into bandwidth is 2 FM. So that is, you can say this is a bandwidth, that is del F upon FM. What is this? This is 6, and this is your beta modulation index of FM. This is the modulation index of FM. Now अब तो प्रॉब्लम सॉल्व है। अब वाइड बैंड, क्योंकि अपन को पता है कि बीटा अगर 6 है तो ये वाइड बैंड एफएम है, क्लियर हो गया यहाँ से, क्योंकि बीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है, अगर 1 से ज्यादा है तो वाइड बैंड एफएम होता है, तो इट इज क्लियरली वाइड बैंड एफएम। तो थिंक द फॉर्मूला ऑफ वाइड बैंड एफएम। वाइड बैंड एफएम का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं आइडिया दे रहा हूं आपको, फिर आप सोचना इस पे। वाइड बैंड एफएम का जो फॉर्मूला है दैट इज एसी समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जेन बीटा cos 2 pi fc plus nfm into t. This is the formula for the wide band FM. Now हमें क्या करना है, इसका कोफिशिएंट निकालना है। किसका कोफिशिएंट निकालना है? क्वेश्चन इज दिस, द कोफिशिएंट ऑफ cos 2 pi 1016 into 10 की पावर 3t। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट चाहिए, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ cos 2 pi, the cos 2 pi 1016 into 10 की पावर 3t, इसका कोफिशिएंट चाहिए ना। यहां से कंपेयर करेंगे इसको, क्योंकि वाइड बैंड एफएम में cos 2 pi fc प्लस nfm आपको क्या दिया हुआ है, fc प्लस nfm आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। fc प्लस nfm अगर आपको पता है तो आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। कंपेयर कीजिए इसको कंपेयर कीजिए, इस वाले एक्सप्रेशन को जो आपसे पूछा है एग्जाम में, और इसको जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है उसको कंपेयर कीजिए। तो fc प्लस nfm इज इक्वल टू 1016 इंटू 10 की पावर 3t। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, देखो आप, क्लियर। एफसी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, एफसी क्वेश्चन में देखिए आप, एफसी इज दिस इज द एफसी 2 पाई एफसी टी यानी 1000 के, क्योंकि 2 पाई है ना, तो 1000 के 1 मेगाहर्ट्ज है, तो 1 मेगाहर्ट्ज यानी 1000 के प्लस एन एफ एम, एन इंटू एफ एम कितना दिया हुआ है 2 किलो हर्ट्ज, 1016 इंटू 10 की पावर 3t। टी नहीं, टी को अपन हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि यही। नाउ कंपेयर इट, सॉल्व इट, n की वैल्यू निकालिए, तो n की वैल्यू विल बी 8 फ्रॉम हियर। इफ n इज क्लियर, तो इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट है जे एन, n इज 8, बीटा क्वेश्चन में भी निकाला है 6, तो आंसर इज जे एट 6। so this is the answer, coefficient of this is j8 6, बेसल फंक्शन j8 6 जो अपन ने पढ़ा था। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। j8 6, the option is j8 6, j8 6, this is correct, this is AC into j8 6, option A, clear, done।
इस तरह के स्टैंडर्ड और अच्छे क्वेश्चंस भी आपको एफएम में देखने को मिलेगा। अगर आपको ये क्लियर है तो आपको फंडामेंटल क्लियर है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। क्लियर? कोई डाउट? नोट डाउन कर लीजिए इसको एक बार, फिर आगे चलेंगे। इस तरह के अच्छे क्वेश्चंस आप करोगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द कॉन्फिडेंस। नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कीजिए इसको। लिख लिया आपने? इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A sinusoidal, a sinusoidal carrier of, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन, carrier of frequency fc is given, fc is given to both am and fm transmitter, fm transmitter. Message signal fm is given as, message signal frequency is given as 5 kilohertz. The message signal frequency, message signal frequency is 5 kilohertz. Maximum frequency deviation, maximum frequency deviation of fm is 2 times, is 2 times bandwidth of m, 2 times bandwidth of am. Find modulation index for both am and fm, am and fm, such that such that such that the strength of the frequency component, the strength of frequency component, frequency component fc plus minus 5 kilohertz is is same in am and fm. Very good question. Another very good question to for fundamentals. A sinusoidal carrier with frequency is given. दोनों एफएम और एम ट्रांसमीटर को दोनों को यही फ्रीक्वेंसी दी गई कैरियर. मैसेज सिग्नल इज सेम फॉर देम. Maximum frequency deviation for FM is, for FM frequency modulation, this is for FM is 2 times bandwidth of AM. Find modulation index for both AM and FM such that the strength of the frequency component is same in AM and FM. This is very good quality question. Note down it and then try to solve it.
कुछ डेटा इसके साथ में भी दिया हुआ है, कुछ डेटा भी दिया हुआ है इसके साथ में, इस क्वेश्चन के साथ में आपको नीड होगा, हालांकि अभी यहाँ नीड, लेकिन आपको डेटा दिया हुआ है, ये एक डेटा दिया हुआ साथ में, J12 इज इक्वल टू 0.57, J14, this extra data is given to you, 0.37, and J18 is 0.08. This is given in the question also given this part is. Now try solve it. इनमें से किसी का एक नीड पड़ेगा हमें, we will require बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है. इफ यू ट्राई टू सॉल्व इट, वेरी गुड क्वेश्चन. सॉल्व कीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सॉल्व कीजिए इसको. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. What is given in the question? Fm is given in the question. Directly Fm is given in the question, and this deviation del f is equal to 2 Fm. ये भी दिया हुआ है. बस उसके बाद क्या चाहिए तुमको? चलिए ट्राई करें, इसको सोल्व करें. नहीं, थोड़ा टाइम चाहिए आपको, लीजिए लीजिए, तो सोल्व थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आप अपना दिमाग नहीं दौड़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा. यू हैव टू थिंक ऑन इट, जस्ट थिंक ऑन इट. अगर आप इस पर अपना दिमाग नहीं दौड़ाएंगे तो काम चलेगा नहीं. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बट फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग चाहिए इसके लिए. अगर आपको फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो आप कंफ्यूज रहोगे. नाउ ट्राई टू सॉल्व इट. देखिए, सबसे पहली लाइन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ एफएम इज 2 टाइम्स ऑफ बैंडविड्थ ऑफ एम. यानी डेल एफ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन फॉर एफएम, is equal to 2 times of bandwidth of AM. Bandwidth of AM is 2 FM. Now यहाँ से clear हो गया कि del F upon FM, that is also called as beta. Beta is equal to कितना है? 4. इसका मतलब clear हो गया, this is wide band FM. इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. This is wide band FM. Now, so this is the modulation index for, this is the modulation index for wide band FM. Now we want modulation. This is for FM. This is modulation index. Half question solved. Modulation index for FM, but we require modulation index for AM. AM is mu. तो म्यू कैसे निकाले? म्यू के लिए इन्होंने एक लाइन लास्ट में बोली है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज सेम एज इन AM एंड FM. फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का स्ट्रेंथ सेम है. तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते कौन से हैं. स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो, स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो. दिस इज द 0, ठीक है ना. केवल पॉजिटिव साइड ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एक ही साइड ड्रॉ कर लेते हैं अपन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो दिस इज एट FC कैरियर. यहाँ पे जो 2 थे वो क्या होते थे? AC AM के लिए म्यू बाय 4. दिस इज ऑल्सो AC म्यू बाय 4. ठीक है. दिस इज एट FC प्लस माइनस 5 किलो हर्ट्ज. दिस इज FC प्लस 5 किलो हर्ट्ज. यही होता था. नाउ गुड.
अब ये स्ट्रेंथ था एएम के लिए, यहाँ बीच में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता था एएम के लिए। ये वाली कहानी थी किसके लिए? एएम के लिए। एफएम के लिए क्या होता है? एफएम के लिए अगर अपन बात करें, एफएम के लिए दिस इज द कैरियर। कैरियर होता ही है एफएम में भी, एफसी। और यहाँ पे वाइड बैंड एफएम में यहाँ पे क्या होता है? एसी, एसी जे बीटा। आपको याद होगा एसी फर्स्ट ऑप्शन जो होता है आपका, दिस इज एसी जे नॉट बीटा बाई टू। ये तो यहाँ होता है, यहां से एसी जे वन बीटा बाय टू। और यहां पे भी वही एसी जे माइनस वन बीटा बाय एसी बाई, यहां पे भी यही होगा। देखो एक बार आप, क्लियर ना? यही होगा ना? अब कंपेयर कर लो। अब क्या कंपेयर कर लो? बोला सर ये तो बिल्कुल क्लियर है, दिमाग लगाओ तो बहुत आसान है। तो ये और ये दोनों बराबर है, इनकी स्ट्रेंथ बराबर है, स्ट्रेंथ इज सेम फॉर बोथ। यानी ए सी म्यू बाई फोर इज इक्वल टू ए सी जे वन बीटा बाई टू। Beta is in the question. What is beta? J beta is 4. So we can write it here. J14. J14. Is it given in the question? J14? Yes, it is given. It is given in the question. J14 is 0.37. Now it's very easy problem. Put here AC. इसको आगे यहां से सोल्व करेंगे। अगर ये कर रहा है ना, मैंने दोनों को बराबर किया है क्योंकि स्ट्रेंथ दोनों की सेम है, गिवन इन द क्वेश्चन। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं। AC म्यू बाई 4 इज इक्वल टू AC J1 beta by 2, and beta is also given as 4 in the question. ये रहा, यहां से निकाला अपन अभी बीटा। नाउ AC mu for 4, AC कितना दिया क्वेश्चन में? AC AC is given in the question or not? AC आपको दिया हुआ होगा, नहीं चाहिए क्योंकि दोनों तरफ कट गया। ठीक है, तो बचा क्या? म्यू, म्यू बाई 4, ये भी कट गया। 2 म्यू बाई 2 इज इक्वल टू J1 4। तो म्यू इज इक्वल टू J1 4 is 0.37 given in the question into 2, 0.707, 0.74। या आपको म्यू इज इक्वल टू 0.744 फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एम, इट इज 0.74। प्रॉब्लम सॉल्व। So sometimes the comparison of the AM and FM is very important. You have to draw the spectrum, you have to compare, you have to think on the question, then decide what I have to do. That's very easy. But this is the conceptual question. If your concept fundamental is clear, no issue. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आपको कोई डाउट आने का सवाल ही नहीं है। नोट डाउन कीजिए इसको, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। कर लिया? लिखिए एक बार। डन, लिख लिया आपने? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डन और नॉट? नॉट डन? जस्ट डू इट, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, नोट डाउन इट। दिस इज स्पेक्ट्रम फॉर एफएम, this is spectrum for AM, the spectrum, and I compared both because given in the question, दोनों को इक्वल कर दिया, खत्म कहानी। था क्या इसमें? बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an unmodulated and
modulated, transmitted power is given by is given by 100 watt is 100 watt with modulation. It is observed that the strength of the first order sideband in the spectrum is zero. In the spectrum is zero. Find this is FM है ना. In unmodulated terminal power is given by 100 with FM modulation लिख लेना है, with frequency modulation is zero. Then नीचे दिया हुआ है find power of carrier frequency component दूसरा total sideband power, second is total sideband power, and third question is total second order sideband power, power. ठीक है. साथ में आपको डेटा दिया हुआ है J of 0 is equal to 1, J of 0 2.4 is equal to 0, J0 3.8 is equal to 0.4, and J0 5.1 is equal to 0.36. ठीक है. तो ये डेटा आपको दिया हुआ है, साथ में आपको कुछ डेटा और भी दिया हुआ है अलग से. पहले एक बार आप ये लिख लीजिए, फिर मैं वो भी लिख दूंगा आपको साइड में. और डेटा जो आपको ऊपर दिया, ऊपर लिख देता हूँ मैं आपको जो डेटा और भी लिया हुआ है ऊपर. J1 2.4 is equal to 0.32, J1 3.8 is equal to 0, J1 5.8 is equal to 0.24, J1 J2 2.4 is equal to 0.28, J2 3.8 is equal to 0.2, and J2 5.1 is equal to 0. So these are the questions given in the sample. This is a good question. This type of question is for the clarity of the concept, for the fundamentals. So solve कीजिए आप इसको, और if you have any doubt you can ask me. Try to solve it. It's a very good question, very good question. Try to solve it. It's a very good question.
Try to solve it. Solve it. सॉल्व कीजिए इसको. Try to solve it. हेलो. क्लियर. नाउ सॉल्व करते हैं इसको. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. लेट मी सॉल्व इट. इट्स वेरी इजी. एन अनमॉड्यूलेटेड ट्रांसमिटेड पावर इज गिवन एज 100 वोल्ट. ठीक है, अनमॉड्यूलेटेड ट्रांसमिटेड पावर इज 100 वोल्ट दिया हुआ है आपको. यानी टोटल पावर जो कैरियर का होता है वाइड बैंड एफएम में, वो भी AC स्क्वायर बाय 2 उतना ही होता है जितना अनमॉड्यूलेटेड वेव का होता है. ये हमें क्लियर है. नाउ अब इसको सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. तो टोटल पावर अनमॉड्यूलेटेड वेव is AC स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 100 वोल्ट. आपको दिया हुआ है ना. ये सेम पावर ही क्या होता है, टोटल पावर. दिस इज ऑल्सो टोटल पावर आफ्टर मॉड्यूलेशन, डब्ल्यू वाइड बैंड एफएम. ये भी वही होता है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है. नाउ अब बात आ रही है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा कि पावर ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. पावर ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पहले स्पेक्ट्रम आना चाहिए. स्पेक्ट्रम क्या होती है, स्पेक्ट्रम की बात करूं, दिस इज एट FC AC Z naught beta by 2. This is the spectrum for power at frequency component. ठीक है. Now at first component strength is 0. The first component the strength is 0. कितनी दी हुई है, कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार. जो भी है पर बहुत कम है, 0 है. कितनी होती है फर्स्ट कंपोनेंट की स्ट्रेंथ, AC J1 beta by 2, that is given 0. Same here, this is also given AC J minus 1 beta by 2 is equal to 0. This is given in the question. Then what given, anything else? First order side band of the strength is 0.
फाइंड द पावर ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, टोटल पावर, साइड बैंड पावर एंड टोटल सेकंड ऑर्डर साइड बैंड पावर। ठीक है सर, ठीक है। अब कैरियर पावर चाहिए, कैरियर का पावर यानी दिस, इसका पावर चाहिए, तो क्या करें? पावर चाहने के लिए पहले आपको इस कंपोनेंट का स्क्वायर बाय 2r करेंगे अपन, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पावर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंपोनेंट इज ए सी जे नॉट बीटा, इसका स्क्वायर बाय 2r। लेकिन हमारे पास जे नॉट बीटा नहीं है ना, तो जे नॉट बीटा को कैसे निकालें? तो जे नॉट बीटा अगर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जे नॉट बीटा देखिए, जे नॉट बीटा कैसे निकल सकता है? हमको ये पता है कि ए सी जे वन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से पता लगा कि दिस इज 0, यहां से पता लगा कि जे वन बीटा इज इक्वल टू 0। तो जे वन किस बीटा के लिए 0 है? क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या आपको? जे वन किस बीटा के लिए 0? जे वन 3.8 के लिए 0 है भाई, और तो कोई दिया हुआ नहीं जे वन किसके लिए 0 है, केवल 3.8 के लिए 0 है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि जे वन 3.8 के लिए ये 0 है, यानी यहां से ये क्लियर हो गया कि बीटा की वैल्यू कितनी आई है भाई? 3.8। बस, तो अब आपको प्रॉब्लम को, अब तो प्रॉब्लम खत्म। अब प्रॉब्लम है ही क्या? अब तो आपको इसका पावर निकालना है। इसके पावर के लिए क्या करें? कैरियर पावर सबसे पहले, कैरियर, इसका पावर क्या होता है? पी सी इज ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर जे नॉट बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ए सी स्क्वायर बाई 2, यही तो होता है। तो दैट इज ए सी स्क्वायर इज गिवन और नॉट इन द क्वेश्चन, यहां से निकाल सकते हैं। ए सी स्क्वायर बाई 2 से 200 एसी का कंपोनेंट का निकाला, तो आपको ए सी स्क्वायर बाई 2 कितना आ रहा है? दैट इज 2, ए सी स्क्वायर बाई 2 तो दिया हुआ है आपको 100, निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपको पूरा कंपोनेंट दिया हुआ है, दैट इज 100। तो 100 इंटू जे नॉट बीटा, जे नॉट 3.8 का होल स्क्वायर, तो दैट इज 100 इंटू जे नॉट 3.8। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3.8 देखो, जे नॉट 3.8, जे नॉट 3.8 इज 0.4, 0.4 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर, तो यू विल गेट, दिख रहा है आपको? दिस इज 0.4 का स्क्वायर, तो यहां से आपका पीसी आ गया 16 वोल्ट। और एक बार अगर आपका कैरियर पावर आ गया, दिस इज 16 वोल्ट। टोटल पावर इज ऑलवेज 100 वोल्ट इन द एफएम। जो अनमॉड्यूलेटेड पावर होता है वही लास्ट पे टोटल पावर होता है। तो साइड बैंड पावर कितना बचा? अगर कैरियर पावर इतना है, टोटल पावर इतना है, ये लाइन मैंने आपको बताई थी उस दिन, अनमॉड्यूलेटेड पावर और पावर आफ्टर मॉड्यूलेशन एफएम इज सेम। तो यहां से अगर आप साइड बैंड पावर निकालोगे, तो 100 माइनस 16 वोट, तो साइड बैंड पावर कितना आ गया? साइड बैंड पावर इज 84 वोट, दैट इज 84 वोट। प्रॉब्लम खत्म, क्लियर? सोल्व कीजिए अब इसको। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर this type of problem you can solve easily. सेम ईयर सेकंड साइड बैंड के लिए भी आप निकाल सकते हो, वो तो मैं अब नहीं बता रहा हूँ, दैट इज वेरी इजी। इसका एलएसबी और यूएसबी दोनों को ऐड कर देना, वी विल गेट द आंसर, इट्स वेरी इजी। ठीक है, देन तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन, this type of question generally appears in the examination. Are you clear about it? Next is, this is all about the basic fundamental of FM frequency modulation. आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने करवाई है, बहुत फंडामेंटली आपको जीरो से मैं लेके आया हूं एफएम तक। अब मुझे इसको जनरेट करना है, एफएम का जनरेशन हमने सीखना है। बिल्कुल क्लियर है? आप सारे क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, आपसे पुराने गेट के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज generation of FM, generation of FM. ठीक है, generation of FM, there are two method,
डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, दोनों ही हम पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, क्लियर। इसका एक और नाम होता है इनडायरेक्ट मेथड का, आर्मस्ट्रांग मेथड। इस नाम से बहुत आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मस्ट्रांग मेथड। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एफएम, टू टाइप्स ऑफ जनरेशन ऑफ एफएम। नैरो बैंड एफएम का जनरेशन हमने देखा था, उसका एक ब्लॉक डायग्राम हमने पढ़ा था। यहाँ हम बात कर रहे हैं वाइड बैंड के एफएम की, ठीक है। तो वाइड बैंड एफएम कैसे जनरेट करें, तो उसके लिए अपन बात करेंगे। तो देयर आर टू मेथड्स, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट मेथड, क्लियर। तो लिखिए आप, फिर अपन फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड इज द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरेशन ऑफ एफ। डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है। हमने एक वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर लिया, क्या लिया, वोल्टेज कंट्रोल्ड हमने एक वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर लिया और उसको, दैट इज वीसीओ, दैट इज वीसीओ, वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर, दैट इज वीसीओ। इसमें दिया हमने इनपुट, क्या दिया, इनपुट दैट इज एम्प्टी, और हमें आउटपुट लिया, दैट आउटपुट इज एफएम जनरेशन, एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कैसे, देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा ऑक्सीलेटर जिसको कौन कंट्रोल करता है, वोल्टेज। यानी एक्सटर्नल सिग्नल जो है किसी भी वीसीओ में, जो एक्सटर्नल सिग्नल है जो आप अप्लाई कर रहे हैं, विल डिसाइड, विल डिसाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेटर। यानी इसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपका जो एक्सटर्नल सिग्नल है किसी भी वीसीओ का, इसका नाम ही क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड, वोल्टेज कंट्रोल। यानी कि वोल्टेज जो है वो कंट्रोल करता है, वोल्टेज किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल, वोल्टेज किसको कंट्रोल करता है, वोल्टेज कंट्रोल, कंट्रोल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। बहुत, बस हो गया काम हमारा। यानी वोल्टेज को बदलो, फ्रीक्वेंसी को चेंज पाओ। और हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब है क्या होता है, कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी, कि जो हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी है उससे कुछ ज्यादा हो, कुछ कम हो। तो यहाँ एम को बदलोगे तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी या चेंज होगी, और चेंज होगी तो ऐसा मॉड्यूलेटेड होगा। दिस इज डायरेक्ट मेथड, दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्लियर। तो राइट एंड नॉट लिखिए, अप्लाइड एक्सटर्नल सिग्नल, applied external signal control the, applied external signal control the oscillating frequency of the VCO, oscillating frequency of the oscillator, oscillating frequency of the oscillator. So it is called as voltage control 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 oscillator. Next लिखिए, circuit diagram for the
बेसिक सर्किट डायग्राम फॉर द वीसीओ। तो वीसीओ का जो बेसिक सर्किट डायग्राम होता है वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर का, इसका जो बेसिक सर्किट डायग्राम होता है वो क्या होता है, वही एलसी सर्किट होगा फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए। देयर विल बी टू एल कंपोनेंट लाइक दिस, एल पढ़ा होगा ना आपने हार्टले और कॉलपिट ऑक्सीलेटर ना, वैसा ही कुछ है। एक वेरेक्टर डायोड पढ़ा आपने, वेरेक्टर डायोड, वेरेक्टर डायोड क्या करता है, वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज को चेंज करता है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपका कैपेसिटेंस चेंज होता है उसका, वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपका कैपेसिटेंस चेंज होगा। दिस एंड दिस इज द एम्प्टी, this is the vector diode, this is the capacitor, this is L1, this is L2, clear? And what will be the frequency, and this is C dash, इसका जो कैपेसिटेंस है वेक्टर डायोड का C dash, जो कि चेंज होता है आपके इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफसी क्या होगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये अपन पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला 1/2 पाई रूट ओवर एल L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 इंटू C प्लस C डैश। आपको इधर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। इसका जो फ्रीक्वेंसी है एफसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपन पढ़ते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, दैट इज 1/2 पाई रूट ओवर एल प्लस L1 प्लस L2 L1 प्लस L2 इंटू C प्लस C डैश। ठीक है, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर नाउ। अब ये जो एमटी है देखो ये काम कैसे करता है, यहां तक लिखिए फिर मैं समझाता हूँ इसकी वर्किंग, बहुत आसान है। बना लीजिए इसको, इसको बनाइए आप। क्लियर, आई एम जस्ट कमिंग, कमिंग इन सेकेंड्स। क्लियर, क्लियर नाउ। अब देखिए यहाँ पे ये जो है सी डेस वेरिएबल है, यहाँ पे जो सी डेस है दिस इज वेरिएबल। ये वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो अगर कैसे भी करके अगर सी डेस चेंज हो जाए, सी डेस अगर चेंज हो जाए तो एफ चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंजेस। ठीक है, अब क्या करेंगे, सीडीएस चेंज हो, सीडीएस कौन कंट्रोल करेगा, एमटी कंट्रोल करेगा, क्योंकि वोल्टेज कंट्रोल वेरेक्टर डायोड है, इसमें वोल्टेज बदलते ही कैपेसिटेंस बदल जाता है। तो वेरेक्टर डायोड का कॉन्सेप्ट आगे यूज करते हैं, आगे यूज करें। सपोज दिस द डायोड, like this is
plus and minus. This is forward bias. This diode is forward bias case. Diode is corrected. Diode is फॉरवर्ड बायस. और अगर ये फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगा? अगर फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस बढ़ता है तो क्या होता है? विड्थ कम होती है. फॉरवर्ड बायस बढ़ने से डिप्लीशन विड्थ कम होती है, और डिप्लीशन विड्थ कम होती है तो आपको पता है कैपेसिटेंस बढ़ता है, क्योंकि कैपेसिटेंस आपने ईडीसी में पढ़ा है, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, या नॉर्मल भी है. कैपेसिटेंस बढ़ेगा और कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. यानी आपने फ्रीक्वेंसी को ऑल्टर कर दिया, ऑल्टर्ड. लेकिन अगर रिवर्स बायस बढ़ेगा तो विड्थ बढ़ेगा, कैपेसिटेंस घटेगा और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी. तो यहाँ पे भी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑल्टर हो गई, लेस या मोर, और यहाँ फ्रीक्वेंसी लेस. अल्टीमेटली आप जो चाह रहे थे, आपकी फ्रीक्वेंसी कम और ज्यादा दोनों ही हो गई. इस वाले केस में जब रिवर्स बायस होगा तो कैसे बनेगा डायग्राम? दिस विल बी लाइक दिस. दिस इज माइनस एम्प्टी एंड दिस इज प्लस एम्प्टी. क्लियर? दिस इज द केस ऑफ reverse bias. This is the case of forward bias. Very simple. And frequency change, और frequency change हो गई तो frequency modulation हो गया. It is very simple circuit. Very. This is the direct method of generation. Direct method of frequency modulation. Direct. This is the direct method. VCO method. Direct method. Clear? एक बार इसको लिख लीजिए आप, देन आगे चलते हैं. लिखिए फटाफट आप. लिख लीजिए आप इसको. This is the direct method of frequency modulation. Now we will talk about the indirect method of frequency modulation. Indirect method of frequency modulation. Done? Clear? Now, next is, this is all about your basic VCO structure and direct method of frequency modulation. Generation of frequency modulated circuit. Now, indirect method. ये इनडायरेक्ट मेथड क्यों है? इसका एक और नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड. ये मेथड किसके लिए है भाई? फॉर द जनरेशन ऑफ वाइड बैंड एफएम. जनरेशन ऑफ वाइड बैंड एफएम के लिए है ये. वाइड बैंड एफएम को जनरेट करता है इनडायरेक्ट मेथड. अब इस मेथड में क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं. तो लिखिए, सबसे पहले इसका नाम इनडायरेक्ट क्यों है? देखिए, इन दिस मेथड
हेलो, हो गया हो गया। हो गया सर, हो गया। हेलो। हम्म। तो एफ सी इज इक्वल टू एन एफ सी, बीटा इज इक्वल टू एन बीटा, एंड एफ एम इज इक्वल टू, एफ एम सेम रहेगा, ये ध्यान रखना। मल्टीप्लाई जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करता है वो आपको एफ सी को करता है, बीटा को करता है, लेकिन एफ एम को नहीं करता। मैसेज सिग्नल कैसे करेगा? तो एफ एम का नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो डेल एफ वो भी किसके बराबर होता है? एन इंटू डेल एफ। तो ये चीजें ध्यान रखना है आप। एफ सी एन एफ सी, बीटा एन बीटा, एफ एम इज सेम, दिस कंसंट्रेशन रखना है यहाँ पे, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहां से कुछ न्यूमेरिकल भी हर बार आते हैं, वी शुड रिमेंबर अबाउट इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्लियर? क्लियर? नाउ लेट वी solve some problems. Question: an FM signal given by s of t is equal to 10 cos 2 pi into 10 की power 6t plus 0.2 sin 4 pi into 10 की power 6t in power 3t. This is 4 into 10 की power 3t. It is passed. It is passed through cascaded frequency multiplier whose multiplying constants are constants are 4 and 5 respectively. Find all the parameter of all the parameter all the parameter of resulting FM signal. FM signal is given by this, and try to solve this question. This is very easy question. Try to solve it. सॉल्व कीजिए इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सोल्व कीजिए।
क्लियर? देखो सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन से, अगर निकालना है गिवन क्या क्या है। हमें जो गिवन है दैट इज, सबसे पहले AC इज इक्वल टू 10, FC इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज, यही दिया हुआ हमें क्वेश्चन में। बीटा इज इक्वल टू 0.2, यहां से कंपेयर कर रहा हूं मैं, ये देखिए बीटा इज इक्वल टू 0.2, बीटा इज इक्वल टू 0.2, FM इज इक्वल टू 2 किलो हर्ट्ज, FM इज इक्वल टू 2 किलो हर्ट्ज, एंड डेल एफ क्या होता है, बीटा इंटू FM, that is given as 0.2 into 2, that is given as 0.4 kilohertz. ठीक है, दिस इज द बीटा डेल एफ। नाउ ट्राई टू सॉल्व इट। अभी तो बहुत आसान कर दिया मैंने प्रॉब्लम को। लिख लिया आपने? सॉल्व कीजिए इसको। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन है कि दो कैस्केडेड लगाए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई, जिसका एक का है n इज इक्वल टू 4 और दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर जो है जिसका n है 5 और यहाँ पे n है 4, यहाँ n है 5। ठीक है, अब यहाँ n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, तब n इज इक्वल टू 4 लगाएंगे तो क्या होगा? तो देखो ब्रेकेट बनाते हैं सबसे पहले। n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या क्या होने वाला है, FC क्या होने वाला है, 4FC, दैट इज 4 इंटू FC यानी 4 मेगाहर्ट्ज। क्लियर? देन बीटा क्या आने वाला है, बीटा इज 4 बीटा, यहाँ का आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं। बीटा इज 4 बीटा, 4 इंटू 0.8, 0.8। FM क्या होने वाला है, सेम रहता है सर FM, FM कभी चेंज नहीं होता, दैट इज 2 किलो हर्ट्ज, जैसा का वैसे ही रहेगा जैसा था। एंड लास्ट वन इज द डेल एफ। डेल एफ कितना होगा, n इंटू डेल एफ, तो दैट इज 4 इंटू 0.4 किलो हर्ट्ज, तो कितना हो जाएगा 1.6 किलो हर्ट्ज, 1.6 किलो हर्ट्ज, ये 1.6 किलो हर्ट्ज। दिस इज n is equal to 4. Now this signal is going in n is equal to 5. Now try to solve it. For n is equal to 5, for n is equal to 5, FC will be, FC will be equal to 5 FC, FC will be equal to n is equal to 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे तो देखो 5 FC हो जाएगा, तो लास्ट FC क्या था 4 मेगाहर्ट्ज, FC डेस जो भी था उससे 5 FC डेस, यानी इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, दिखेगा नहीं आपको। नो n इज इक्वल टू 5 वाले मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू 5, ग्रीन कलर से n इज इक्वल टू 5। नाउ फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, FC डेस नया 4 इंटू 5, 20 मेगाहर्ट्ज। नाउ क्लियर, 20 मेगाहर्ट्ज। देन बीटा डेस कितना हो जाएगा, पहले कितना था 0.8, लास्ट वैल्यू लेंगे जो यहाँ थी इंटू 5, दैट इज 4। क्लियर? FM डेज विल बी सेम जो हमारा शुरू से चल रहा है 2 किलो हर्ट्ज। लास्ट वन इज द डेल एफ डेज लास्ट कितना आया था 1.6 किलो हर्ट्ज इंटू 5, दैट इज 8 किलो हर्ट्ज। नाउ अब यहाँ एक सिग्निफिकेंट चेंज आपने देखा, यहां तक सिग्नल क्या था, बीटा जब 0.8 था तो यहां तक सिग्नल क्या था, नैरो बैंड FM। यहां जो सिग्नल आएगा दैट वाज द नैरो बैंड FM, लेकिन यहां से जब सिग्नल आउटपुट मिला दैट वाज वाइड बैंड FM, क्योंकि उसका बीटा कितना हो गया 4।
नाउ अब इसका बैंडविड्थ निकालना है सिग्नल का, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कार्शन बैंडविड्थ के फॉर्मूले थे 2 प्लस कितना हो जाएगा, बैंडविड्थ निकालना है। अब यहाँ से जो जनरेटेड सिग्नल होगा उसका बैंडविड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, बैंडविड्थ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कार्सन रूल से। तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम। Bandwidth is 2 into beta is last, final beta is 4 plus 1 into 2 kilohertz. And what will be the value? This value will be equal to कितना आएगा, this will be 20 kilohertz. That is bandwidth is 20 kilohertz. That is 20 kilohertz. बहुत आसान है, clear? So this is the concept how the multiplier works, how the Armstrong method works, how narrowband FM is converted into wideband FM with the help of these frequency multipliers. With the help of these frequency multipliers. क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट या नहीं हुआ, क्लियर? क्लियर? नाउ दिस इज द जनरेशन ऑफ एफएम। तो हमने बेसिक एफएम पढ़ा, एफएम का जनरेशन पढ़ा, एफएम पढ़ा, एफएम का जनरेशन पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं फेज मॉड्यूलेशन, और फेज मॉड्यूलेशन का जनरेशन उसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारा जो मेन डीमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम। क्लियर? तो डीमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम हम इसके बाद करेंगे, पहले हम बेसिक्स ऑफ फेज मॉड्यूलेशन देख लेते हैं और आपस में एफएम का रिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एफएम और फेज मॉड्यूलेशन में रिलेशन होता है। तो इसलिए अपन पहले इसको फेज मॉड्यूलेशन का बेसिक फंडामेंटल पढ़ते हैं और उसके बाद में we will read about the demodulation of this FM signal. Clear? तो राइट हेडिंग डालिए फेज मॉड्यूलेशन, नेक्स्ट हेडिंग इसको लिख लीजिए एक बार, उसके बाद हेडिंग डालेंगे फेज मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। क्लियर? नेक्स्ट फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन, तो फेज मॉड्यूलेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या है? फेज मॉड्यूलेशन क्या कहता है? फेज मॉड्यूलेशन कहता है कि द फेज ऑफ द कैरियर, द फेज ऑफ द फेज ऑफ द carrier wave, carrier wave, carrier wave, the phase of the carrier wave varied in accordance to in accordance to in accordance to the phase of the carrier wave, the phase of the carrier wave is varied in accordance to message signal. तो ये कैसे चेंज होगा सर? बिल्कुल बहुत आसान है। देखिए, अगर कोई भी कैरियर है, कोई कैरियर कैसा होता है, सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी cos 2 pi fct plus 5. Suppose this is the carrier, suppose this is the carrier, ठीक है। सबसे पहले अपन ये मान के चलते हैं कि दिस इज द ac cos 2 pi fct आफ्टर आफ्टर मॉड्यूलेशन, आफ्टर मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसको आप नाम तो चाहो तो मॉड्यूलेशन का नाम भी दे सकते हैं, इस कैरियर का नाम मॉड्यूलेशन दे देते हैं एस ऑफ पीएम, ठीक है। ये पहले AC cos 2 pi fct थी बिफोर मॉड्यूलेशन, AC cos 2 pi fct सिंपल कैरियर था ना। अब इसका अपन ने क्या किया, मॉड्यूलेट किया, मॉड्यूलेट किया तो इसमें कुछ फेज चेंज है। तो फेज जो है ये वेरी कर रहा है। पहले फेज जीरो था, देयर वाज अ जीरो फेज, इनिशियली इट वाज जीरो, जब ये मॉड्यूलेट नहीं थी तो यहाँ सिर्फ AC cos 2 pi fct था। लेकिन जब इसको फेज मॉड्यूलेशन किया तो इसका फेज वेरी हुआ, दिस इज द फाइव, दिस इज वेरिड। पर वेरी किसके अकॉर्डिंग होगा? द फेज ऑफ द कैरियर वेव इज वेरिड इन अकॉर्डेंस टू द मैसेज सिग्नल, द फेज इज द वेरिड इन अकॉर्डेंस टू द मैसेज सिग्नल। तो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग अगर वेरी होगा तो हम क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू
Kp into mt, यानी फाई जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, mt के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो फाई जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, mt के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो वी कैन राइट इट S of Pm is equal to AC cos 2 pi fct plus Kp into mt. This is the phase modulated signal. This is the phase modulated signal. Clear? लिखा? This is the expression for phase modulated signal. लिखा? एक बार इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। The basic expression of FM, almost PM or FM are same. There are minute difference between the PM and FM. लिख लिया ना? देखिए, अब हमको ये पता लग गया कि फेज मॉड्यूलेशन का जो सिग्नल है वो क्या है। दैट सिग्नल इज AC cos 2 pi fct plus Kp into mt. कोई डाउट? नाउ mt सपोज मैसेज सिग्नल am cos 2 pi fmt पुट हियर, तो क्या आ जाएगा, AC cos 2 pi fct plus Kp into mt। तो Kp है, Kp into am cos 2 pi fmt। क्लियर? नाउ दिस Kp into fm अगर इसको कंपेयर करें किससे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से, तो वहां यहाँ बीटा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे जो Kp into am है, Kp into am है, दैट बीटा फॉर फेज मॉड्यूलेशन, फॉर फेज मॉड्यूलेशन। और इसी Kpm को भी यहाँ पे क्या लिखते हैं, चेंज इन फेज डेविएशन। फेज वहां Kf into m होता था, यहाँ फेज डेविएशन, दिस इज द फेज डेविएशन and this is the modulation index for phase modulation, phase modulation. This is very important. So Kpam into, this is very important for the, clear? और we can say del phi, एक और definition है, del phi is the maximum of
मैक्सिमम ऑफ केपी इंटू एम टी, क्योंकि एम टी का जो मैक्सिमम है वो एम है, तो दिस इज ऑल्सो वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट ऑल्सो दिस del phi is equal to maximum of kp into mt, maximum of kp into mt, we can write this, note down it. दिस इज मैक्सिमम फेज डेविएशन, इसका नाम रख दीजिए मैक्सिमम, डेल फाई इज मैक्सिमम फेज डेविएशन। जैसे वहां डेल एफ होता था, लेकिन वहां डेल एफ की डेफिनेशन अलग होती थी, वहां के एफ इंटू एम अपॉन एफ एम होता था, लेकिन यहाँ केपी इंटू एम है केवल। तो एक नोट लिखिए, द फेज मॉड्यूलेशन in phase modulation beta and del phi are independent of message signal frequency. Beta and del phi are independent of message signal frequency. Message signal frequency. Message signal frequency. This is very important formula for the exam. Note down it. लिखिए इसको फटाफट। चलिए नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड जो रिजल्ट आया फेज मॉड्यूलेशन का, एक्सप्रेशन आया, वो क्या आया? एक्सप्रेशन वाज लाइक दिस, ए सी कोस 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी इंटू एम टी। ये आप पूरा एक्सप्रेशन ये आप लिख सकते हो, ए सी कोस 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा आई बीटा इंटू एम, ये फेज वाला है ना, ध्यान रखना, एम कोस 2 पाई एफ एम टी, यही होता है। दिस इज फॉर पीएम और फॉर एफएम, एफएम के लिए कंपेयर विद एफएम, एफएम तो क्या हो जाएगा, ए सी कोस 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा एम बीटा इंटू एम, क्या होता था? नहीं एम नहीं होता था यहाँ पे, इट इज साइन। यहाँ पे भी सॉरी सॉरी, अब जब अपने ये लिख दिया तो बीटा नहीं आएगा ना, समझना। दैट इज यहाँ पे अपने के पी इंटू एम की जगह बीटा लिख दिया ना अपने के, तो यहाँ सिर्फ बीटा आएगा, सॉरी सॉरी, दिस इज बीटा इंटू कोस 2 पाई एफ एम टी, ठीक है। इसको थोड़ा पास में लिखते हैं, बीटा इंटू कोस 2 पाई एफ एम टी, दिस वाज फॉर फेज मॉड्यूलेशन। अब इसके लिए यहाँ क्या होता था, यहाँ साइन 2 पाई एफ एम टी, दिस वाज फॉर द, किसके लिए था? ये था सर हमारा एफ एम के लिए, यहाँ साइन हुआ करता था, यहाँ कोस है यहाँ साइन है, यानी दोनों एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, अदरवाइज ऑल द एक्सप्रेशन आर सेम। मैसेज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है इन मैसेज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, अदरवाइज ऑल बोथ आर सेम। तो राइट द 2-3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर रिगार्डिंग इट। लिखिए पॉइंट नंबर 1, राइट पॉइंट नंबर 1, general expression for PM and FM, general expression for PM and FM are same, general expression for PM and FM are same except, general expression for PM and FM are same except 90 degree phase shift in
accept 90-degree phase shift in message frequency component. Message frequency component. Next point, the magnitude spectrum of PM and FM. The magnitude spectrum of PM and FM will be same. The magnitude spectrum of PM and FM will be same. Third point लिखिए, bandwidth and power of phase modulation. Bandwidth and power of phase modulation will be same as FM. Will be same as FM. Will be same as FM. So these are the three important points. These are the three important points generally asked in the examination. Clear? तो बैंडविड्थ और पावर दोनों सेम होती है एफएम के लिए और पीएम के लिए. लास्ट एक क्वेश्चन लिखिए. लास्ट एक क्वेश्चन लिखिए. फेज मॉड्यूलेटर signal is given by S of t is equal to 10 cos 2 pi into 10 की पावर 6t plus 6 sin 6 pi into 10 की पावर 3t. Find all parameter. Find all parameter. Full parameter. सॉल्व कीजिए. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ट्राई टू सॉल्व इट. सॉल्व कीजिए. लिखिए. सॉल्व कीजिए इसको. बेसिक पैरामीटर निकालिए. दिस इज एसी, दिस इज एफसी, दिस इज एफएम. व्हाट इज एसी? एसी इज इक्वल टू 10, एफसी इज इक्वल टू 2 पाई एफसीटी. 2 पाई एफसीटी के लिए क्या होगा? 2 पाई एफसी एफसी एफसीटी. कंपेयर करो इसको तो 1 मेगाहर्ट्ज. क्लियर? एंड देन फाइनली एफएम कितना आ रहा है? एफएम 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 इज 2 pi fmt 3 kilohertz and beta is 6. Beta for phase modulation is 6. Now अब तो सब कुछ फाइंड कर सकते हैं. So all the formula are same. देखो यहाँ जो बीटा होता है फेज मॉड्यूलेशन में, वही क्या होता है? फेज डेविएशन होता है मैक्सिमम. तो फेज डेविएशन इज 6. ये तो दिया हुआ ही आपको. बैंडविड्थ कितना होगा? 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम. तो 2 इंटू बीटा इज 6 प्लस 1 इंटू एफ एम इज 3 किलो हेर्ट्ज. कितना आएगा? 6 के साथ 42 किलो हेर्ट्ज. ठीक है. एंड पीटी इज इक्वल टू, एंड फाइनली पीटी इज इक्वल टू एसी स्क्वायर बाई 2. एसी कितना दिया हुआ है? 10 by 2. It is 50 watt. This is PT. Clear? So these are very basic fundamental questions. We can solve it.
we can easily solve it, and we can find the values very easily. Clear? चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट, नोट डाउन कर लीजिए.